Good morning, students. Hope you guys are doing good and preparing for exams. We are going to soon conduct exams online. Okay, so today I have come with a topic. I just want to guess. I just want to know what's your guess about the topic, right? Let's see. The statistics in Journal of India. 350% dies every day because of road accident. Okay, four people die every minute because of heart attacks. More than 22,000 people died in 1998 from drowning. Okay, 5.1 million people died from strokes. So I just want to see what is your guess? What's your idea by showing this, by displaying this slide? I just want to see where your mind goes after watching this. Some people will say uh, health and care, right? Because I'm showing you the statistics because of the deaths and all. Okay, so some students will say no, it's we are deficit of hospitals. Some will say healthcare. Some may say we should exercise, like that, right? Well, you all are correct in your own perception, but these all deaths, no, it forms one main topic to discuss. That is first aid. Wow, that's good. Okay. So you see, basically, I just want to tell you that 350% die every day because of road accidents in India, all over all the states. It's the general means data that in India, 350 people die because of road accidents. So we should be very careful while driving car, scooter, whatever. Okay. So let us this one. Four people die every minute because of the heart attacks. Say in India, four people die every minute because of the heart attacks. More than 22,000 people die in 1999 from drowning. Means till date. Say 22,000 people died because of drowning in river, pool, okay, well. 5.1 million people died from strokes. Okay, paralytic strokes, heart strokes, whatever. So, a discussion all of these means these points it need to lead one topic, that is general topic. How can we help? Okay, so the topic is first aid. Okay, first aid is the immediate help given to the victim of an accident or sudden illness before medical help is obtained. So first, why we need means why we just had a look over this small statistics, because it involved death. So life is very precious. Okay, whenever we have this kind of incidents, like example accident somewhere, somebody falls sudden ill. Okay, somebody got fits, somebody got stroke, some like that. So we must know how to deal basic. Okay, the basic thing of medical is which we must know. Means if somebody is have fever, if there is no medical aid nearby, at least we must know, we must apply the cold soaked cloth, that cloth soaked in water, so that we can give apply it on the forehead, body. Okay, so that will lower the temperature, not to keep the patient in further more tragic way. So these are known as basic first aids. So first aid is just generally immediate help given to the victim. Chain of survival. Okay, इन ऑर्डर ऑफ ए पर्सन टू सर्वाइव, एक व्यक्ति को हम बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें. अर्ली एक्सेस मीन्स अगर कोई हादसा हो गया, सो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले. जितना मतलब ये तरीके हैं चेन ऑफ सर्वाइवल्स कितने हैं ये. टेलीफोन मीन्स इन्फॉर्म करो, ठीक है. एंड अर्ली फर्स्ट एड CPR. CPR इज़ अ प्रोसीजर. ओके, CPR इज़ अ प्रोसीजर, हम आगे जाके पढ़ेंगे वो डिटेल में, लेकिन CPR एक प्रोसीजर है. मान लीजिए जब कोई बंदा अनकॉन्शियस है, ठीक है, उसका हार्ट बैठा हुआ है, हार्ट इज़ नॉट मीन्स यू फील दैट ही इज़ टोटली अनकॉन्शियस, हार्ट इज़ नॉट working that much small slightly,
या ड्राउन हो चुका, मतलब पानी में डूब गया है, उसको लेके आया, उसको वो हार्ट को वापस करना है। हार्ट का काम होता है पंप करना, ठीक है, मतलब बेसिकली प्यूरिफाई करना ब्लड को। जब तक कि हार्ट काम ना करे तो तब तक मतलब कुछ किसी को ब्लड ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिमाग में भी मतलब ब्लड नहीं पहुंचेगा, सब जगह पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो बॉडी एकदम पैरालिटिक स्टेट में आ जाएगी। तो सीपीआर हम पढ़ेंगे आके, आप यही रखो याद। अर्ली डिफिब्रिलेशन ईएमएस स्कीम सीन, जो हम आपने सुना होगा कभी, इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। एक हार्ट, मतलब उसका हार्ट बैठा हुआ था, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। तो नॉर्मली वो हम जस्ट जनरली मतलब वो फर्स्ट एड, मतलब जो एक फर्स्ट एड हो गया, मतलब एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया, हमारे पास तो ये इक्विपमेंट होता नहीं है, राइट। बट एम्बुलेंसेस जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं फर्स्ट एड एम्बुलेंसेस या क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस जो होते हैं। तो उनमें ये फैसिलिटीज़ होती है। जब आपने फ़ोन किया, जो एम्बुलेंस में एक टेक्नीशियन रहता है या डॉक्टर जिसको बोलते हैं, उनके पास ये मतलब सुविधाएं होती हैं, सो दैट कि वो उसको सेफली हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, जहाँ पे वो उसका प्रॉपर इलाज करेंगे। सो अर्ली एडवांस केयर हॉस्पिटल, आपने देखा, हमने एक एक्सीडेंट देखा, हमने फ़ोन किया, तुरंत वहाँ पे आया, अर्ली स्टेज में एम्बुलेंस आई या कोई भी आया, उसने मतलब स्टेज ऑफ जो व्यक्ति की, उसकी जो हेल्थ स्टेज है, उसका बहुत मतलब कंडीशन नॉट गुड, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सीपीआर दिया, अर्ली डिफिब्रिलेशन किया और उसके बाद हॉस्पिटल पहुँचाया गया। बोलते हैं 5 स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एड, क्या क्या है जो फर्स्ट एड देने का जो तरीका है, मतलब जो स्टेप्स जो है वो क्या क्या है। नंबर 1 PPP, आप याद रखो, ट्रिपल पी। ट्रिपल पी से ही याद आपको रहेगा याद, प्रिजर्व, प्रिवेंट एंड प्रमोट। प्रीशियस लाइफ, लाइफ बहुत कीमती है, ठीक है। प्रिवेंट थिंग्स बिकमिंग वर्स, मतलब हमें एक कोशिश करना है कि चीज़ों को ख़राब ना होने दें, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में टक्कर लगी, उसको चोट लगी, कॉन्शियस है वो, ठीक है, एकदम बात भी कर रहा है, सब कुछ कर, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। तो हमें उसको ऐसा घसीटना नहीं है, उसको हमें उसी स्टेट में रखना है, या कोई उसका जो जो लिफ्ट करने का जो मतलब बेड है, उसमें हमें लेटाना है उसको, या किसी अच्छे से हार्ड बोर्ड पे, सो दैट कि उसको जो ब्रेक हुआ है या जो किसी मतलब चीज़ में डैमेज हुआ है वो फर्दर डैमेज ना हो, और लास्ट हमारा यही है कि वो रिकवर हो जाए। अनदर पॉइंट क्या है, DTD, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। डायग्नोज टू नो द प्रॉब्लम, लुक, लिसन एंड फील, मतलब हमें डायग्नोज करना, बोलते हैं ना, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन is very easy, but defect identification is a good job, means a tough job. So diagnosis वो जो होता है ना, diagnosis एक मतलब एक बहुत ही टफ जॉब होता है। एक बार डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद ट्रीट करना एक प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर होता है। तो डॉक्टर का एम जो होता है डायग्नोसिस करना होता है मेन, उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो जनरल प्रोसीजर है उसका। ट्रीटमेंट, बिफोर टेकिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर को मतलब जाने से पहले हमें ये कोशिश करना है कि हमें पता चले कि भाई हुआ क्या है, ताकि उसे वक्त बच जाए और हमें इजी हो जाए, डॉक्टर को भी इजी हो जाए इसको ट्रीट करने में। और डिस्पोजल, फिर वही डिस्पोज करने में मतलब हॉस्पिटल की तरफ। नंबर 3 क्या है, 4 lakhs ड्यूरिंग डायग्नोसिस चेक फॉर लैक ऑफ ब्रीथिंग, लैक ऑफ हार्ट बीट, लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। हमें ये चेक करना है कि कहीं ये सांस ले रहा है क्या, अगर ले रहा है तो ऐसा नहीं कि 1 मिनट में ले, हमें देखना है 5-10 मिनट वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। हार्ट बीट उसका देखना है, चेक करना है, 60 to 80 होना चाहिए उसका हार्ट बीट, चलो 70 हो जाए, 72 या 80 तक आना चाहिए, हार्ट बीट होना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि ब्लड है इसमें कि नहीं, ब्लड लॉस तो नहीं हो गया, मतलब अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पूरा आपको लगे पता कि नहीं भाई ब्लड लॉस, हम तो मेजर नहीं कर पाएंगे उसको वहाँ पे ब्लड कितना है, बट हमें एक जनरल आइडिया होता है 10 से 12 लीटर तक जो ब्लड होता है बॉडी में, तो इतना मिनिमम होना ही चाहिए 4 से 5 लीटर तक जी सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, हमें ये देखना है कि ये कहीं बेहोश तो नहीं है, अगर बेहोश हमें उसको कोशिश करना है, उठाना है, मतलब शेक करना है, भाई उठ जा भाई, थोड़ा बात कर, ठीक है। और कैब, उसके बाद जो है अपना 4th कैब, CAB, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। तो जब हमने इसको कॉन्शियस वॉन्शियस वॉन्स देखा, शेक किया, शाउट किया,
तो हमें पता तो चले भाई हाँ बंदा सही हालत में है। नंबर 4 पॉइंट अब याद रखना है आपको, कैप। नंबर 4 क्या है? कैप। सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथ। की ब्रेन सप्लाइड विद ऑक्सीजन बाय फॉलोइंग कैप ऑफ रिसिस्टेशन। सर्कुलेशन, मेंटेन सर्कुलेशन, ठीक है। आपको एक मैं आपको बताया सीपीआर जो होता है, रेसिस्टेशन का जो प्रोसीजर होता है, वो हमें पता होना चाहिए। कितनी बार पंप करना है हार्ट हमें, मतलब चेस्ट को, और कितनी बार हमें सांस देनी है उसका लंग्स फुलाने के लिए, ठीक है। तो वो हमें मेंटेन करना है। और इसका जो एयरवे पैसेज जो है देखना है, किसी व्यक्ति को इसका मतलब मुंह बंद तो नहीं है किसी चीज़ से, या टंग तो मान लीजिए जो फिट्स किसी को आते हैं तो चांसेस होते हैं इसका टंग जो है रोल बैक होता है, तो हमें वो कोशिश करना है उसका मुंह खोलना है और उसका जीभ जो है ठीक करना है, ताकि उसका जो एयरवे जो है थ्रॉट के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू क्लियर हो जाए। और ब्रीदिंग मेंटेन करना है हमें। एक ब्रीदिंग बैग भी आता है, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो ब्रीदिंग बैग, एक मैनुअल ब्रीदिंग बैग आता है, तो हम उसको फुलाते हैं हाथ से ही, मतलब प्रेस करते हैं, वो हवा देता है। नंबर 5, रिकवरी एंड रिकवरी पोजिशन ट्रांसपोर्ट। हमें उस व्यक्ति को, जो भी विक्टिम है, उसको प्रॉपर तरीके से अच्छी पोजीशन में, ताकि उसका फर्दर, मान लो किसी को स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हुआ है, उसको उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब और भी वर्स नहीं होना चाहिए। तो उसको प्रॉपर तरीके से, अगर आपने देखा होगा क्रिकेट अगर देखते हैं या फुटबॉल कभी देखा होगा, में किसी को चोट लगती है तो आपने देखा उसको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ लेके जाते हैं, ताकि वो चल भी सकता है, लेकिन उसको फर्दर वो डिट्रॉइट ना हो जाए वो प्रॉब्लम, उसको प्रॉपर बेड के साथ लेके जाते हैं और अच्छे ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जाते हैं, जहाँ झटका वटका कम हो। हमारा एम ऑफ फर्स्ट एड टू प्रिजर्व लाइफ। भाई लाइफ तो प्रिजर्व करना है हमें, ठीक, ये तो हमारा एम होना चाहिए, और जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाए, ठीक है। टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द कैजुअलिटी कंडीशन, और हमें ये कोशिश करना है कि वो उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। उसकी जो मतलब जो कंडीशन है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है और अगर वो थोड़ा सा सांस वांस ले पा रहा है, ऐसा हमें कोशिश करना है कि वो उसकी हालत ख़राब ना हो, कि हमें तुरंत मतलब ये फर्स्ट एड देना है उसको। अरेंज ट्रांसपोर्ट टू द ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल, और ये हमें एम होना है इसका, यही मतलब मकसद, फर्स्ट एड का मकसद यही है, लाइफ को बचाना, जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, और कंडीशन को ख़राब ना होने देना, और हॉस्पिटल मतलब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराना हॉस्पिटल तक। अब रूल्स ऑफ फर्स्ट एड क्या है? रूल्स ये है, नंबर 1, रीच द एक्सीडेंट स्पॉट क्विकली। जहाँ पे जितना, मान लीजिए आपने आवाज़ सुनी एकदम धड़ाम से, कोलिजन आवाज़ सुनी आपने, और आपको लगा कि एक्सीडेंट हो गया, मतलब चिल्लाना है, ठीक है, सो दैट कि बाकी लोग भी अवेयर हो जाए, भाई एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, ताकि बाकी को भी पता चले भाई एक्सीडेंट हुआ है। तो हमें उस स्पॉट तक क्विकली जाना है। बी काम, मेथोडिकल एंड क्विक। हमें एकदम आराम से, मतलब आराम मीन्स ठंडे दिमाग से सोचना है कि भाई इसका क्या कैसे कर सकते हैं, मैं तो कौन सा तरीका इसको यूज़ करें हम। ऐसे हड़बड़ी में कोई गलत काम नहीं करना है। लगी है पैर में और आप उसको सीपीआर दे रहे हैं, या सीपीआर मतलब बॉडी एकदम पैरालाइज्ड है और आप अंगूठे का जो हर्ट हुआ है उसको, ब्लड हो रहा है उसको आप ये कर रहे हैं, ठीक है। प्रायोरिटी के हिसाब से देखना है वो, लेकिन उसके लिए आपका माइंड काम होना चाहिए। लुक फॉर द फॉलोइंग: ब्रीथिंग, ब्लीडिंग एंड शॉक। ब्रीथिंग, सांस ले रहा है वो, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है उसका बॉडी, अगर किसी को चोट लगा है तो कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, वो हमें देखना है। शॉक में तो नहीं है बॉडी, ठीक है, शॉक मतलब एकदम सुन तो नहीं है बॉडी, कहीं पे एकदम आंखें खुली हुई ऊपर देख रहा है या किसी चीज़ की तरफ देख रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, वो हमें देखना है। अवॉइड अननेसेसरली हैंडलिंग ऑफ कैजुअलिटी। मैंने आपको फिर बताया कि एक बार अगर किसी को चोट लगी तो हमें एकदम सावधानी से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको घसीट के लेके जाए या कंधे पे कोई लेके जाए एकदम हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ते, वैसा नहीं होना चाहिए। सो टिल वी विल जस्ट कंप्लीट टुडे फॉर अप टू रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, वी विल just cover this first aid, a big topic, we will cover this into 3 sessions, okay। उसके बाद हम further studies करेंगे। So dear student, today the topic is first aid। so बच्चों प्लीज़ आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मे बी विद इन 10 or 12 days में, so prepare accordingly, okay, and I wish you best of luck, take care।